اور آپ لوگ اپنی زندگی میں کئی بار یہ سن بھی چکے ہوں گے کہ اس دنیا کا آخری وقت قریب ہے۔ بڑے بڑے علم رکھنے والے لوگ کئی صدیوں سے قیامت کی یا کہے کہ دنیا ختم ہونے کی پریڈکشن یعنی پیشن گوئی کرتے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ 21ویں صدی یعنی اس دور میں کئی لوگ قیامت آنے کا دعویٰ بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو کو ریئیکشن دے آ رہے ہیں نور حدیث، ان کے چینل کا نام ہے، ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا۔ آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو انت تک دیکھیے گا۔ دوستوں بڑی امپورٹنٹ ویڈیو آج کی، بہت بہترین ویڈیو آج کی اور بہت عبرت والی ویڈیو بھی آج کی۔ دوستوں قیامت یہ ہم سب جانتے ہیں، قیامت آئے گی، کب آئے گی، کس دن آئے گی، کس تاریخ کو آئے گی، یہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ سوا اللہ کے۔ صرف اللہ ہی بہتر جانے کہ قیامت کب آئے گی۔ لیکن قیامت کی کچھ نشانیاں تھیں جو ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال سے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور وہ نشانیاں لگ بھگ پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ کچھ بڑی نشانیاں ہیں وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہیں، جیسے کہ یاجوج ماجوج کا آنا، تو وہ سب سے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ قیامت کی وہ ایسی کون کون نشانی پوری ہو چکی ہیں۔ سائنس نے کیا حساب سے کہا ہے قیامت بہت جلد آنے والی ہے، سائنس نے جو کہا ہے وہ ایک طرف جو ہمارے پیارے آقا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ۔ اب یہی دیکھنا ہے کہ اس ویڈیو میں کیا بتاتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا اہم ہیں، کیا پوری ہو گئی ہیں، لگ بھگ پوری ہو گئی ہیں، یا قیامت بہت نزدیک آ چکی ہے۔ جو بھی معاملہ ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم لوگ کلیئر کریں گے کہ کیا ہے صحیح معاملہ، کہ قیامت کب تک کے آنے کی امید ہے، کہ سائنس کیا کہتا ہے، سائنس اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور پھر چلیے پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ یہ دنیا کئی ہزار سالوں سے چلتی آ رہی ہے، اور آپ لوگ اپنی زندگی میں کئی بار یہ سن بھی چکے ہوں گے کہ اس دنیا کا آخری وقت قریب ہے۔ بڑے بڑے علم رکھنے والے لوگ کئی صدیوں سے قیامت کی یا کہے کہ دنیا ختم ہونے کی پریڈکشن یعنی پیشن گوئی کرتے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ 21ویں صدی یعنی اس دور میں کئی لوگ قیامت آنے کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں، جس میں سے آپ نے 21 دسمبر 2012 کے بارے میں سنا ہی ہوگا کہ یہ دنیا کا آخری دن ہوگا۔ دراصل یہ بات ایک دعوے سے شروع ہوئی تھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ ایک نبیرو نام کا سیارہ، جس میں بتایا گیا ہے کہ سومیرینز کھوجا ہے، وہ لگاتار تیزی سے پرتھوی کی اور آ رہا ہے۔ اس مصیبت کے بارے میں پہلے مئی 2003 میں پریڈکشن یعنی کہ بھوشیوانی کے ذریعے بتایا جا چکا تھا۔ جب یہ پریڈکشن فیل ہوئی اور اس کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوا تو قیامت کی تاریخ کو آگے بڑھا کر 31 دسمبر 2012 رکھ دیا گیا، اور اس بات کو گزرے بھی 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور کچھ بھی ابھی تک نہیں ہوا۔ پر ابھی 2021 میں سائنسدانوں نے ایک رپورٹ جاری کی تھی، جسے سوشل میڈیا کے ذریعے کافی لوگوں نے دیکھا اور اس پر بحث بھی ہوئی کہ یہ قیامت کی کوئی بڑی نشانی تو نہیں ہے۔ سائنسدانوں کی ایک ٹیم کے مطابق زمین کے گھومنے کی رفتار میں عجیب و غریب تیزی محسوس ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو دن 24 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا اب اس سے کچھ کم کا ہو گیا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی ان نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے جو تقریباً پوری ہو چکی ہے۔ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کی گھڑی، اس کا دن، اس کا سال اور ان کا صحیح وقت صرف اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، لیکن اس کی کچھ نشانیاں ضرور ہے جو پوری ہوگی، اس کے بعد ہی قیامت ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹیاں ماؤں کو نوکرانی سمجھے گی اور وہ خود آرام کرے گی اور ان سے کام لے گی تو سمجھو قیامت نزدیک ہے۔ اور مزید فرمایا کہ جب بیٹے اپنے دوستوں کی عزت کریں گے اور اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دیں گے، پھر فرمایا وقت میں برکت نہیں ہوگی، یعنی وقت بہت جلد گزرے گا۔ آج دوستوں دیکھا جا سکتا ہے 2023 کا چھٹا مہینہ چل رہا ہے، یعنی 2023 ختم ہونے میں صرف 6 مہینے اور باقی ہے۔ اور قیامت کی نشانی میں سے یہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وقت ایسے گزرے گا کہ ایک سال ایک مہینے کے برابر، اور ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو، تو سمجھو قیامت نزدیک ہے۔ پھر فرمایا کہ علم اٹھایا جائے گا، یعنی علماء اٹھائے جائیں گے، پھر جاہلوں کو اپنا امام اور پیش امام بنائے پھر رہے ہوں گے، وہ خود تو گمراہ ہوں گے ہی اور ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ پیارے دوستو، دیکھا جا سکتا ہے کہ واقعتاً ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے علم اٹھایا گیا ہو، علماء اٹھائے گئے ہو، لوگ جاہلوں کو ہی اپنا امام اور پیش امام بنائے پھر رہے ہیں۔ پھر فرمایا مسجد کے اندر شور اور دنیا کی باتیں ہوگی، اور نماز کے شرائط اور ارکان کی بات کرے بغیر لوگ نماز پڑھیں گے، یہاں تک کہ 50 میں سے ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا اونٹوں اور بکریوں کو چروانے والے، یعنی اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے برہنہ یعنی ننگا بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر محسوس کریں گے۔ پیارے دوستو، سعودی کے شہر ریاض میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پہ پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی سب سے اونچی عمارت بنی، تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑی عمارت جدہ میں بنائی جائے گی، کیونکہ وہاں کے شہزادے نے یہ بات اعلانیہ طور پر کر دی ہے۔
जिसका अभी जोरों शोरों से जिक्र जारी है। और आज अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी है। दोस्तों, अर्ज करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो आज हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। दोस्तों, सऊदी अरब और अमरात में बारिश शुरू हो चुकी है। मक्का जद्दा में सैलाब आ चुकी है। सरजमीन अरब, जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सरसब्ज बनाने की कोशिश की जा रही थी, अब वो कुदरती मौसमों के बाइस से सरसब्ज बनती जा रही है। सऊदी अरेबिया गंदुम यानी गेहूं में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सब्ज होना शुरू हो चुके हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाने होंगे, जिससे पानी की नहरें निकाली जाएगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसल लहलहाई होगी। ये पेशन गोई जो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की थी, उसे हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख चुके हैं। जब कयामत का वक्त नजदीक आ जाएगा तो उससे पहले साल महीने के बराबर, महीने हफ्तों के बराबर, हफ्ते दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा एक चिंगारी के बराबर महसूस हुआ करेगा। वक्त के एक मजबूत दायरे से हमारी पूरी कायनात का निज़ाम चल रहा है, और ये निज़ाम जैसे जैसे ख़त्म होता रहेगा वैसे वैसे ये कायनात अपनी तबाही की ओर भागती रहेगी। और एक दिन आएगा जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, तब यह कायनात वक्त के दायरे से पूरी तरह बाहर आ जाएगी और कोई जानदार नहीं बचेगा। कयामत आने से कुछ वक्त पहले एक हवा का झोंका आएगा जो ईमान वाले लोगों की नाक में से उनकी रूहें निकाल लेगा, और हर उस इंसान की जिसने जिंदगी में एक बार भी दिल से अल्लाह को पुकारा होगा। और जैसे ही आखिरी ईमान वाले की रूह कब्ज की जाएगी, उसके बाद यानी उसके फौरन बाद सारी दुनिया एक हैबतनाक और खौफनाक आवाज से गूंज उठेगी। कायनात के सैयारे टूटे हुए सितारों की मानिंद हो जाएंगे। दुनिया में तबाही का माहौल होगा। आसमान टूट जाएगा और जमीन फट जाएगी और समंदर में भूचाल आ जाएगा। पहाड़ अपनी जगह से हटकर रेजा रेजा हो जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह इब्राहिम में आयत नंबर 48 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, डराओ उन्हें उस दिन से जबकि जमीन और आसमान बदल कर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे और सब के सब अल्लाह वाहिद कहार के सामने बेनकाब होकर जाहिर हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल ये आवाज़ ही इस वक्त की ज़िंदगी के खात्मे और एक नई और कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी की शुरुआत होगी, जब हर चीज़ फना हो जाएगी, मसलन इंसान, जिन्नात, यहाँ तक के फरिश्ते भी। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला अपने अर्श पर एक ज़रब लगाएगा और कहेगा, कहाँ है बादशाह, कहाँ है जो खुदा होने का दावा करते थे, कहाँ है जो मजलूमों पर जुल्म करते थे। पर इन सवालों का जवाब देने वाला वहाँ कोई मौजूद नहीं होगा, क्योंकि कायनात का तो नामो निशान ही मिट चुका होगा और अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हर तरफ खामोशी छाई होगी। पर इंसान होने के एतबार से हमारे जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि आखिर कयामत कब आएगी। पर इस बारे में अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, मगर अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए कुरान में और हमारे आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कयामत से पहले होने वाली काफ़ी निशानियों का जिक्र फरमाया है, जिनको हम पूरा होते देख भी रहे हैं। और इससे हमें यह भी मालूम हो रहा है कि अब कयामत में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने पीछे जिक्र किया कि कयामत के नज़दीक वक्त बेहद तेज़ी से गुजरने लगेगा, जिसमें साल महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा एक चिंगारी के मानिंद होगा। और जैसे लगता है कि इसके पूरा होने की भी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि साइंसदानों की 2021 में आई रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीन की गर्दिश करने की जो रफ्तार है उसमें मामूली सी तेज़ी आ चुकी है। ज़मीन के घूमने की रफ्तार तेज़ होने की वजह से एक दिन 24 घंटे से कुछ माइक्रो सेकंड्स कम हो गया है। हदीस मुबारका में वक्त की तेज़ी से मुराद शायद वक्त की कदर से मुताल्लिक है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, इस दौर में इंसान इतना मसरूफ़ हो गया है कि उसको एक लम्हा भी फुर्सत नहीं मिलता। अगर हम ये कहें कि एक इंसान की ज़िंदगी आज एक मशीन की तरह हो गई है, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के दौर में इंसान की सोच सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही है, और इसी वजह से वक्त गुजरता रहता है और हमें महसूस तक नहीं होता, क्योंकि जब हमारा ध्यान कहीं और होता है तो वक्त का गुजरना हमें कहाँ महसूस होगा। इस हवाले से एक दूसरी राय ये भी पेश की जा सकती है कि जदीद के मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म की वजह से फासलों में अब कमी आ चुकी है, और देखा जाए तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में पहले जो वक्त लगता था, आज हाईटेक और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से वो वक्त इंतहाई कम हो गया है। पर क्या ज़मीन की गर्दिश की रफ्तार में आई कमी की वजह से दिन और रात में कोई तब्दीली आएगी? इस हवाले से साइंसदानों ने ज़मीन की रफ्तार में आई जिस तब्दीली के बारे में कहा है वो इंतहाई कम वक्त है, इतना मामूली वक्त जो हमें गौर करने पर भी महसूस नहीं होगा। 1973 से 2005 तक के इतने बड़े अरसे में 5 जुलाई 2005 को इसे अब तक का सबसे छोटा दिन माना गया था, लेकिन 2005 में 2020 के अरसे में तकरीबन 28 मरतबा ऐसा हुआ कि एक दिन के वक्त में कमी आई हो। और साइंसदानों की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी ज़मीन की रफ्तार में तेज़ी महसूस की गई है पिछले 50 सालों के मुकाबले, और ये अंदाज़ा लगाया गया है कि आने वाले सालों में इसमें और भी तेज़ी आ सकती है। और दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक वक्त आएगा जब एक आम इंसान भी वक्त में आई तब्दीली और ज़मीन की गर्दिशी रफ्तार में आई कमी को महसूस कर सकेगा। और आखिर इस रफ्तार का इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अगर ऐसा हो कि 24 घंटे के एक दिन में 1 मिनट का फ़र्क आ जाए, तो ज़मीन पर मौजूद पेड़ पौधे और इंसान सभी पर इसका असर ज़रूर होगा। पूरी दुनिया का सिस्टम बिगड़ जाएगा।
लेकिन साइंसदानों का मानना है कि ऐसा होने में, यानी अगर हम बात करें कि वक्त एकदम से तेज चलने लगे, ऐसा अचानक से तो नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा होता है तो इसमें कई सालों का वक्त लगेगा। अब दोस्तों, क्योंकि वो अकली एतबार से सोचते हैं, इसीलिए उनका मानना कई हद तक सही हो सकता है। बाकी हमारा अकीदा तो ये है कि अल्लाह ही हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, वो जो चाहे वही होता है। हदीस में वक्त की जिस तेजी के बारे में जिक्र किया गया है, वो तेजी अल्लाह चाहे तो अभी भी आ सकती है और ना चाहे तो कई हजार साल बाद भी नहीं आएगी। और जब वो वक्त करीब आएगा, जब अल्लाह का हुक्म होगा, तो उसकी वजह से ज़लज़ले और तूफान ज़मीन पर तबाही मचा देंगे और तब इस ज़मीन पर जिंदा रहना नामुमकिन सा हो जाएगा। लिहाजा कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, जब ज़मीन भूचाल से हिला दी जाएगी और ज़मीन अपने अंदर के बोझ निकाल फेंकेगी और इंसान कहेगा कि इसको क्या हुआ, उस रोज़ वो अपने ऊपर गुजरे हालात बयां कर देगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया होगा। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर क़यामत कब आएगी? इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है, लेकिन हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कुछ निशानियां ज़रूर इरशाद फरमा दी। उसमें से कुछ मैं आपके सामने पेश करता हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में जब इंसान का वजूद कायम हुआ, यानी वो पहले इंसान हमारे और आपके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मोमिन थे, वो एक खुदा की इबादत करते थे। उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी कुछ औलादे ही पूरी उम्मत थे। एक हदीस पाक में मुसलमानों और इस्लाम के बारे में बताया गया है कि दुनिया में ये सब चीज़ें कितना अरसा रहने वाली है। बुखारी शरीफ की एक हदीस में कुछ इस तरह है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग इस दुनिया में पिछली उम्मतों के मुकाबले सिर्फ इतनी ही देर रहोगे जितना असर और मगरिब के दरमियान वक्त होता है। बुखारी शरीफ की एक और हदीस में आता है कि अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों की मिसाल एक ऐसे शख्स की है जो लोगों को सुबह से शाम तक काम करने के लिए उजरत पर रखे, लेकिन वो दोपहर तक काम करके कहते हैं कि हमें तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं, हमसे और इससे ज़्यादा काम नहीं हो सकता। फिर और लोग आते हैं जो असर तक काम करते हैं, थोड़ा काम करने के बाद कहते हैं कि हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फिर वो शख्स कुछ और लोगों को लाता है जो बाकी का काम मगरिब तक पूरा कर देते हैं, और इन लोगों को पिछले दो ग्रुप का मुआवजा भी मिल जाता है। जो पहले वाले दो ग्रुप बताए गए हैं, उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम तक का था, और जो तीसरा और आखिरी ग्रुप था वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत का बताया गया है। दोपहर तक का जो हिस्सा था वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को बताया गया है, और असर का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर तक कायम रहा। इसके बाद जो अरसा दोपहर से असर तक का था, उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का दौर तक का था, जिसमें उन पर इंजील नाजिल हुई। और फिर इन सब के बाद हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत का दौर जारी हुआ और आप पर कुरान एक मोज़िज़े के तौर पर नाजिल हुआ, और आपके उम्मत का दौर सिर्फ इतना है जितना बाकी नबियों की उम्मत के मुकाबले असर से मगरिब तक का वक्त है। दोस्तों, एक जगह पर इमाम सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मुसलमानों का दौरे वजूद बस एक दिन के बराबर है, और आलम अरवाह में एक दिन 1000 साल का माना जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फजलो करम और आपकी दुआ से अल्लाह रब्बे कायनात ने इस उम्मत को आधे दिन की मोहलत और दे दी। इस हिसाब से शायद उस उम्मत का अरसा 1500 साल बनता है, और ये अल्लाह को बेहतर मालूम है। दोस्तों, आज हम 1444 हिजरी में है, तो क्या इस हिसाब से मुसलमानों के पास सिर्फ 56 साल का वक्त ही बचा हुआ है? याद रहे कि ये महज एक अंदाजा है जो इंसानों ने लगाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई बात साबित नहीं है, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने महज निशानियां बताई है जो अल्लाह ताला ने उम्मत को बताने का हुक्म दिया था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या अल्लाह के रसूल, क़यामत कब आएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को ही इसका इल्म है। तो पूछने वाले ने फिर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, कोई निशानी तो बता दे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जिना और फहाशी आम हो जाएगी, जब गुनाह ना लगेगा, और जब माओ को जलील किया जाएगा, क़यामत आ जाएगी। दोस्तों, इस तरह की अलग अलग अहादीस में क़यामत की निशानियों का जिक्र है। बहरहाल ये अंदाज़ा इसलिए भी लगाया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का अरसा उलमाए किराम के हिसाब से तकरीबन 2000 साल था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का अरसा तकरीबन 600 साल, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 600 साल बाद हमारे आपके और सारी कायनात के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। इसे आप ऐसे समझिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अरसे से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अरसे तक तकरीबन 2000 साल बनते हैं, और जब हम इस नंबर्स को एक इक्वेशन में रखते हैं तो कुछ इस तरह दिखता है। इमाम सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुताबिक अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक अरसे की मोहलत मिली थी, पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआओं से आधे दिन यानी तकरीबन 500 साल की मोहलत और दे दी गई। तो इस हिसाब से इस उम्मत का अरसा हयात तकरीबन 1500 साल होता है, और बाकी अल्लाह बेहतर जानने वाला है। दोस्तों, एक कैलकुलेशन आसानी से समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत पर गुजरा पूरा अरसा कितना था, इस पर इख्तिलाफ पाया गया है। पर इस सब के बावजूद हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि क़यामत का वक्त बहुत करीब है। हो सकता है मुसलमानों का 1400 साल या 1500 साल का अरसा पूरा होने वाला हो, क्या मालूम ये सदी इस दुनिया का आखिरी सदी हो। क्योंकि ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कायनात के हवाले से जितनी भी निशानियां बताई थी तकरीबन सबके सब पूरी हो चुकी है, जिनमें बस सबसे बड़ी और आखिरी पेशन गोइया होना बाकी है। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा क़यामत के बारे में, साइंसदानों को क्या कहना है और हमारे आका ने क्या कहा था। हमारे आका ने जो कहा था वो हक है,
کہ قیامت کب آئے گی، کس دن آئے گی، کس وقت آئے گی، صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا قیامت کس دن آئے گی، کس وقت آئے گی، کس ٹائم آئے گی۔ سائنس اپنے اپنے حساب سے بتا رہا ہے کہ 2012 میں آئے گی، 2021 میں آئے گی، فلاں آئے گی۔ ہاں، لیکن نشانیاں ہمارے پیارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی۔ قیامت کی جو نشانی بتائی تھی وہ عموماً ہم سب جو دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ لگ بھگ قیامت کی نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں دھیرے دھیرے کر کے۔ ہاں، بڑی نشانی کچھ قیامت کی جو باقی ہیں ابھی، جیسے کہ یاجوج ماجوج کا آنا، کانا دجال کا آنا، یہ سب نشانیاں باقی ہیں۔ باقی لگ بھگ نشانیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بے شرمی عام ہوگی، بے حیائی عام ہوگی، ایک دوسرے کو لوگ مطلب کوئی اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو رہا تو آدمی چپ چاپ لے کے نکل جائے گا، اس کو بولے گا تک نہیں، مطلب نفسا نفسی کا عالم جسے کہتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی حال ہی میں دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں فلسطین میں جنگ جو ہوئی، اسرائیل نے جو جنگ کی، فلسطین کو کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 56-57 کنٹری گلفی جو کوئی بھی نہیں بولا۔ اسی کو کہیں گے نفسا نفسی کا عالم، صرف اپنے آپ کو دیکھو بس، باقی دوسرا کا کیا ہو رہا کچھ نہیں مطلب۔ تو یہ سب بھی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو آپ کی اس ویڈیو میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو یہ ہے ہمارا ریئیکشن تھا۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا اور عبرت لیجیے گا۔ قیامت کسی وقت آئے گی تو بتا کے نہیں آئے گی۔ توبہ استغفار کر لے اور جتنا ہو سکے اللہ کے راستے بتائے ہوئے راستے پہ چلے اور ہمارے پیارے آقا نے جو سنتیں ہیں ان پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ دنیا بھی آخرت دونوں سے سنور جائے گی۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔